Today we'll start with geometrical isomerism. In the last lecture, we have seen about the structural isomerism. Today we'll do about geometrical isomerism. What is geometrical isomerism? The isomerism which arises due to difference in the spatial arrangement of atoms or groups. The isomerism which arises due to difference in the spatial arrangement of atoms or group about doubly bonded carbon atom. About doubly bonded carbon atom is called as geometrical isomerism. I'll repeat again. The isomerism arises due to what? Difference in the spatial arrangement of atoms or group. About what? About doubly bonded carbon atom. Okay, we'll take one example. We have the formula CH3, CH, double bond CH, CH. This compound is called as bute. Go 1, 2, 3, 4. 4 carbon atoms of bute. Double bond between second and third carbon atoms, so lower number is 2. 1, 2, 3, 4. 4 carbon atom is called as the bute. Double bond between 2 and 3 carbon atom is called as the bute 2, and then double bond, so it is called as EN. So this compound is what? Bute 2EN. Same structure I will write this way: CH3, CH, double bond, CH, CH3. सेम स्ट्रक्चर, खाली H को मैंने ऊपर लिख दिया. CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3, H को यहाँ से ऊपर लिखा. सेम स्ट्रक्चर में ऐसे लिखूंगा: C डबल बॉन्ड C, H, CH3, H, CH3. सेम स्ट्रक्चर, खाली उनको यहाँ किसको कर रहा है? H एंड CH3 को, और यहाँ पे अटैच किसको कर रहा है? H एंड CH3. सेम स्ट्रक्चर. ये हॉरिजॉन्टल है. I will write vertical. C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C मैंने वर्टिकल लिखा. और C डबल बॉन्ड को क्या अटैच है? यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप अटैच है? एक ग्रुप अटैच है H, दूसरा ग्रुप अटैच है CH3. लोअर कार्बन को कौन सा ग्रुप अटैच है? H, CH3. तो यहाँ पे मैंने अटैच किया H, CH3. अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे, सिमिलर एटम on the same side of the carbon-carbon double bond. The carbon-carbon double bond के लेफ्ट साइड में क्या आ रहे हैं? दोनों H. कार्बन डबल बॉन्ड के राइट साइड में क्या आ रहा है? CH3. तो कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में आ रहा है H, कार्बन डबल बॉन्ड के राइट साइड में आ रहा है CH3. तो सेम ग्रुप अगर दोनों साइड आ जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड के साइड में सेम एटम रहेंगे, डबल बॉन्ड के एक साइड में दोनों ग्रुप सिमिलर रहेंगे, then it is called as a cis isomer. The similar group on the same side of the carbon-carbon double, or we can also called as a cis bute 2EN. Is also called as what? Cis bute 2EN. Okay, then similarly यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. C डबल बॉन्ड C, H, CH3. और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा? इनका पोजीशन चेंज करूँगा.
चेंज करूंगा मतलब H यहाँ पे लिखूंगा और CH3 यहाँ पे लिखूंगा। अभी क्या हुआ, सिमिलर ग्रुप आर अपोजिट साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में आ रहा है H, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के राइट साइड में आ रहा है H, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के राइट साइड में आ रहा है CH3, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में आ रहा है। सिमिलर ग्रुप डायगोनली अपोजिट है। सिमिलर ग्रुप अगर डायगोनली अपोजिट है तो उससे आप क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर। से क्या बोलोगे आप, ट्रांस आइसोमर, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांस ब्यूट 2A। ट्रांस ब्यूटीन था, लेकिन कौन सा ब्यूटीन है, ट्रांस, और ये कौन सा ब्यूटीन है, सिस। तो अभी जस्ट व्हाट इज सिस, सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द कार्बन कार्बन डबल। Similar group on the same side of the carbon carbon double bond are called as cis, and if similar groups are diagonally opposite then they are called as a trans. They are called as a trans. I'll just write down the meaning of the cis isomer and write down the meaning of the trans isomer. Okay, what is cis isomer? The isomer in which two similar atoms or similar group lie on the same side of the carbon carbon double. The isomer in which two similar atom or two similar group lie on the same side, two group lie on the same side of the double bond, then it is called as the cis isomer. ये हमारा देखो, two similar group on the same side of the carbon carbon double, two similar atom on the same side of the carbon carbon double bond, तो उसे क्या बोलोगे, cis isomer. Trans isomer, the isomer in which two similar atoms, the isomer in which two similar atoms or groups lie on the opposite side of the double bond, are called as a trans isomer. The isomer in which two similar atoms or groups lie on the opposite side of the double bond are called as a trans isomer. तो यहाँ पे like for similar group CH3 diagonally opposite, H and H diagonally opposite, तो इसे आप क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर. The similar groups on the same side of opposite side of the carbon carbon double bond are called as a trans isomer. And okay, so the isomer in which two similar atom or a group lie on the opposite side of the double bond are called as a trans isomer. And due to different arrangement of atom in the group or group in the space, due to different arrangement of atom or group in the space, ये दोनों आइसोमर क्या करेंगे, they will have different physical properties, मतलब उनकी physical properties अलग रहेंगे. लाइक कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट उनका अलग रहेगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग रहेगा, या उनका सॉल्युबिलिटी अलग रहेगा. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ये भी ब्यूटीन 2 ब्यूटीन है, ये भी ब्यूट 2 है, दोनों का फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम है. इसका भी नाम है ब्यूट 2 ए, इसका भी नाम है ब्यूट 2 ए, खाली ये सीस से और ट्रांस है. तो दोनों के क्या होगा, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 277 केल्विन. ओके, और इसका अगर आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा 274 केल्विन. मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे. तो व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? The isomerism which arises due to the difference in the spatial मतलब स्पेस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में एटम किस तरह से अरेंज हो रहे, स्पेस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में एटम किस तरह अरेंजमेंट हो रहे, such kind of arrangement of atom or groups above the double bonded carbon atom are called as what, geometrical isomerism. And what is that? The two similar group can be on the same side of the carbon carbon double bond,
then it is called as cis isomer. And two similar groups are diagonally opposite, then it is called as a trans isomer. These isomer, they differ in their physical properties like melting point, boiling point and solubility. मतलब उनका physical properties अलग अलग रहेंगे. Okay, chemical property may be the same, but physical properties are going different, like melting point, boiling point, solubility, etc. are going to be different. Okay, तो ये हम लोगों ने देखा geometrical isomerism में. और यहाँ पे दो isomers है, एक है cis isomer, that similar atom on the same side of the double. Trans, similar atom on the opposite side of the carbon-carbon double bond are called as a trans isomer. So with this, we have finished with the isomerism. Now we'll go for the next heading. Next heading. Preparation of alkenes. Preparation of alkenes. The first preparation of the alkenes, the preparation of the alkene, the first one, that is elimination reaction. The first one, elimination reaction. It is also called as 1,2 elimination. It is also called as 1,2 elimination. Now, why it is called as elimination here? See, now what is elimination? Elimination मतलब removal. Elimination का मतलब क्या होता है? Removal. What is removal here? The reaction in which two atoms or groups, reaction in which two atoms or groups are eliminated or removed from adjacent carbon atom. मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे? टू आइटम्स को रिमूव करना है या टू ग्रुप्स को रिमूव करना है. कहाँ से रिमूव करना है? फ्रॉम दी एडजेसेंट कार्बन आइटम. और एडजेसेंट कार्बन आइटम में इसलिए उनको क्या नाम दिया? 1,2 एलिमिनेशन. क्या नाम दिया उनको? 1,2 एलिमिनेशन. द रिएक्शन इन विच टू एटम्स या ग्रुप्स, हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है. हमें दो एटम्स को या दो ग्रुप्स को यहाँ से क्या करना है? रिमूव करना है. और कहाँ से रिमूव करोगे? एडजेसेंट कार्बन आइटम से. अगर पहले कार्बन से एक आइटम रिमूव किया, दूसरे कार्बन आइटम से कुछ और रिमूव करो, तो एडजेसेंट कार्बन आइटम से हमें रिमूव करना है. इसलिए उसका नाम क्या दिया हुआ है? 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन. 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन. और इसके अंदर हमें दो रिएक्शन स्टडी करने हैं. द फर्स्ट वन इज डिहाइड्रो halogenation of alkyl halide. Dehydro halogenation of alkyl halide. मतलब D मतलब what? D मतलब removal. Removal of hydro मतलब हाइड्रोजन. Halogenation मतलब removal of hydrogen and halogen. Removal of hydrogen and halogen from adjacent carbon atoms. D मतलब what? Removal. Hydro, HYDRO, hydro मतलब hydrogen. Halo मतलब halogen. So removal of hydrogen and halogen from adjacent carbon atom are called as a dehydrohalogenation. और किससे रिमूव करेंगे हम? अल्काइल हैलाइड्स. किससे रिमूव करोगे? अल्काइल हैलाइड्स. Removal of hydrogen and halogen from adjacent carbon atoms. From adjacent carbon atom
ओके, तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br। तो ये हमारा Br, इसका नाम क्या रहेगा? CH3 CH2, CH3 CH2 इज इथाइल, Br is bromide, C2H5 is ethyl, Br is called as the bromide, ethyl bromide। अब इसे मैं ऐसा लिखूंगा CH3 CH2 Br, सेम स्ट्रक्चर, CH3 CH3 CH2 और Br मैंने यहाँ पे लिखा। तो जहाँ पे हमारा Br रहेगा, Br मतलब हैलाइड रहेगा, उस कार्बन को क्या बोलोगे आप? अल्फा। जहाँ पे हमारा हैलोजन रहेगा उस कार्बन को क्या बोलोगे? अल्फा। और इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन आइटम, ये अगर हमारा अल्फा है तो इसे क्या नाम दोगे? बीटा, अल्फा बीटा। या ये अगर हमारा नंबर 1 है तो ये हमारा नंबर 2 है, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो 1 से रिमूव करोगे Br, 2 से रिमूव करोगे H, इसलिए उसको नाम क्या दिया हुआ है? 1-2 एलिमिनेशन। और अल्फा से रिमूव करोगे Br, Br मतलब हैलोजन, और बीटा से रिमूव करोगे हाइड्रोजन, हैलोजन और हाइड्रोजन, तो इसलिए क्या है? उससे अल्फा बीटा एलिमिनेशन, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे क्या करोगे आप? हीट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, and KOH is alcoholic, KOH is alcoholic। यहाँ पे हीट करोगे, तो अभी यहाँ पे हीट करने के बाद आइदर यू कैन राइट डाउन द वर्ड बॉइल या ट्रायंगुलर सिंबल लिखोगे तो भी चलेगा। देखो, जिस कार्बन के ऊपर Br अटैच है इसका भी नाम क्या आएगा? इथाइल ब्रोमाइड। जिस कार्बन आइटम पे Br है उसको नंबर अल्फा बोलोगे या नंबर 1 बोलोगे, और इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन आइटम को बीटा बोलोगे या नंबर 2 बोलोगे। तो अल्फा कार्बन से क्या रिमूव करना है? Br, Br मतलब हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से क्या रिमूव करना है? H, H मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन रिमूव करे कहां से? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम। यहाँ पे क्या बचेगा फिर? यहाँ से H चला जाएगा, यहाँ से Br चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचेगा? CH2। लेकिन यहाँ पे नोटिस करो कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है, कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा है। कार्बन के पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक बॉन्ड है, 3। और यहाँ पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड थी, तो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लिखा। तो ये 2 कार्बन आइटम मतलब क्या बोलोगे? ईथ। डबल बॉन्ड मतलब सफिक्स क्या आ जाएगा? ENE, तो ये हमारा बना इथीन, ये हमारा बना इथीन प्लस। अभी यहाँ से क्या रिमूव कर दिया? H एंड Br रिमूव कर दिया है। तो H एंड Br जो रिमूव करे, Br के साथ ले जाएगा, Br विल गो विथ K, Br विल गो विथ K, और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? KBr, और H will go with OH, H will go with OH, H will go with OH, और यहाँ पे क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। तो Br मतलब यहाँ से HBr रिमूव कर दिया, लेकिन Br किसके साथ चला जाएगा? K के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? KBr। और H किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ, तो क्या मिलेगा हमें? H2, और ये हमारा इथेन। इस एलिमिनेशन is also called as alpha beta elimination. This is also called as what? Alpha beta elimination. This elimination is also called as alpha beta elimination. इसे हम alpha beta elimination बोलेंगे। Okay, alpha beta elimination बोलेंगे।
अभी और एग्जांपल ले लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। CH3 CH2 Br। हम लोग क्या 3 कार्बन आइटम है तो इसे बोलोगे प्रोपाइल। 1 2 3 कार्बन आइटम प्रोपाइल एंड Br इज कॉल्ड एज bromide, propyl bromide। या all 3 carbon atom are in the continuation तो इससे बोलोगे n propyl bromide, n propyl bromide। इसे मैं ऐसे लिखूंगा CH3 CH2 और ये CH2 मैंने ऐसा लिख दिया CH2 Br लिख दिया। ये आपको समझने के लिए आना चाहिए। तो Br यहाँ पे है, जहाँ पे हमारा Br अटैच करेगा वो कौन सा कार्बन आइटम रहेगा अल्फा, और इमीडिएट नेक्स्ट कौन सा रहेगा बीटा। जहाँ पे हमारा Br अटैच करेगा उस कार्बन को क्या बोलोगे आप अल्फा, इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलोगे बीटा। इसका नंबर रहेगा 1 और इसका नंबर रहेगा 2। तो 1 से क्या रिमूव करना है Br, 2 से क्या रिमूव करना है हाइड्रोजन। सेम स्ट्रक्चर CH3 CH2 CH2 Br मैंने ऐसे लिखा, इसका भी नाम सेम ही है N प्रोपाइल ब्रोमाइड। N प्रोपाइल ब्रोमाइड, या उसे आप बोल सकते हो ब्रोमो प्रोपेन। यहाँ पे Br है इसलिए ब्रोमो। 3 कार्बन आइटम है 1 2 3 इसीलिए प्रोपेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्रोमो प्रोपेन। और ब्रोमीन कहाँ पे है, ब्रोमीन कहाँ पे है 1 कार्बन पे, तो इसलिए आप क्या बोलोगे 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब दोनों में से कोई भी एक नाम लिखो। पहला नाम क्या था एन प्रोपाइल ब्रोमाइड था और दूसरा नाम क्या था 1 ब्रोमो प्रोपेन था। इसके अंदर अगर मैंने KOH ऐड कर दिया, KOH अगर मैंने ऐड कर दिया, KOH कौन से कंडीशन में रहेगा अल्कोहलिक कंडीशन में रहेगा एंड ऑन बॉइलिंग। ये हमारा अल्कोहलिक कंडीशन रहेगा। ये हमारा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये हमारा KOH अल्कोहलिक है और यहाँ पे बॉइल करें। तो अभी देखो ये हमारा Br जहाँ पे अटैच करेगा वो रहेगा अल्फा, उसके इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलोगे बीटा। अल्फा से क्या एलिमिनेट करोगे Br, बीटा से क्या एलिमिनेट करोगे H। अल्फा से एलिमिनेट करोगे Br, बीटा से एलिमिनेट करोगे H। करेक्ट। तो अभी देखो अल्फा से चला जाएगा Br, बीटा से चला, यहाँ पे क्या बचेगा CH बचेगा और यहाँ पे CH2 बचेगा। तो व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट CH3 CH और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे भी CH2 है। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड 4, ये करेक्ट है। इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा हाइड्रोजन एक कम है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक तीसरा बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल। यहाँ पे 1 2 3 कार्बन आइटम, 3 कार्बन को क्या बोलोगे आप प्रो। 1 2 3 कार्बन को क्या बोलोगे आप प्रो। डबल बॉन्ड है तो इसलिए क्या बोलोगे प्रो, क्या बोलोगे प्रोपीन। और प्रोपीन के साथ प्लस के किसके साथ चला जाएगा Br के साथ, तो क्या मिलेगा KBr। के कंबाइन विद द Br मिलेगा KBr और H कंबाइन विद OH और यहाँ पे क्या मिलेगा वाटर। K कंबाइन विद द Br मिलेगा KBr एंड H कंबाइन विद द OH विल गिव यू व्हाट वाटर। तो ये हमारा प्रोपीन। ओके, तो ये हमारा क्या किससे था, हमारा हेडिंग क्या था प्रेपरेशन ऑफ द अल्कीन
बाय विच मेथड एलिमिनेशन, मतलब बाय विच एलिमिनेशन, 1 to एलिमिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, किससे रिमूव किया था, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ डी हाइड्रो हेलोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमारे पास स्टार्टिंग का कंपाउंड हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड था, इथाइल ब्रोमाइड से एक कार्बन से रिमूव किया Br, दूसरे कार्बन से रिमूव किया H और हमें मिला इथेन। यहाँ पे हमारे पास एन प्रोपाइल ब्रोमाइड था, एक कार्बन से रिमूव कर दिया Br, दूसरे कार्बन से रिमूव कर दिया H, एक कार्बन से रिमूव कर दिया Br, दूसरे कार्बन से रिमूव कर दिया H, तो यहाँ पे मिलेगा, और जहाँ से रिमूव होगा उनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। देखो यहाँ पे, यहाँ से रिमूव होगा Br, यहाँ से रिमूव होगा H, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो जिस दो कार्बन आइटम से आप कोई भी आइटम को एलिमिनेट करोगे, जिस दो कार्बन आइटम से आप कोई भी आइटम को एलिमिनेट करोगे, उनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। यस, अभी एलिमिनेशन का दूसरा, dehydration of alcohol, dehydration of alcohol, or dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol means what? Alcohol on heating with sulfuric acid, मतलब हमें अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना और हमें क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा। सो अल्कोहल ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिलेगा, अल्किन मिलेगा विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब वाटर। सो हियर आई जस्ट राइट डाउन dehydration means removal of water. Dehydration means removal of water. Dehydration means removal of water. Water remove करना है, okay? Water remove करना है। तो वाटर कैसे रिमूव करोगे, देखो यहाँ से डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, तो वाटर रिमूव करना है। फर्स्ट वी टेक द, यहाँ पे दिस एग्जांपल इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन को भी आप क्या बोलोगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। विल टेक फर्स्ट एग्जांपल, CH3 CH2 OH, ethyl alcohol, C2H5 is ethyl and OH is called as alcohol. I'll repeat again, C2 मतलब ethyl, C2H5 दो कार्बन आइटम, 5 हाइड्रोजन आइटम को क्या बोलोगे, इथाइल अल्कोहल। अभी सेम कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूंगा, CH3 CH2 OH, सेम कंपाउंड CH3 CH2OH। तो यहाँ पे हमारा OH है, तो इस कार्बन आइटम को आप क्या बोलोगे, अल्फा। इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन को क्या बोलोगे, बीटा। एक मिनट, राइट ऑन द नेक्स्ट पेज। CH3 CH2OH। फ्रॉम ये हमारा कार्बन आइटम है, इस कार्बन से रिमूव करोगे OH, तो ये रहेगा हमारा अल्फा। और इमीडिएट नेक्स्ट कार्बन आइटम क्या रहेगा, हमारा बीटा। तो अल्फा कार्बन से रिमूव करना पड़ेगा OH, बीटा कार्बन से रिमूव करना पड़ेगा H। तो इसलिए उसको नाम क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। नाम क्या दिया हुआ है,
अल्फा बीटा एलिमिनेशन, और यहाँ पे एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन हीटिंग। हमें क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड ऑन हीटिंग। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करोगे और हीट करोगे, तो अभी देखो यहाँ से एलिमिनेट होगा OH, अल्फा कार्बन से रिमूव होगा OH, बीटा कार्बन से रिमूव होगा H करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा फिर, CH2, यहाँ पे बचेगा CH2, यहाँ पे भी क्या बचेगा, CH2, और H और OH तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ बनेगा डबल, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और ये कंपाउंड बनेगा हमारा इथीन। 2 कार्बन एटम है इसलिए ईथ, और देखो यहाँ से OH रिमूव कर दिया, यहाँ से H रिमूव कर दिया, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, बिकॉज एक एक एटम चला जाएगा। तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लिखना, इथीन और प्लस H एंड OH कंबाइन टुगेदर टू गिव्स यू व्हाट, वाटर। यहाँ पे वाटर रिमूव करे इसलिए इसे क्या बोलोगे, डिहाइड्रेशन बोलोगे। यहाँ पे वाटर रिमूव हो रहा है इसलिए उसको क्या बोलोगे, डिहाइड्रेशन बोलोगे, करेक्ट। दूसरा एग्जांपल लो, सपोज टेक CH3 CH2 OH, सेम स्ट्रक्चर कैसे लिख सकते हो आप, CH3 CH2 CH2OH, ऐसा लिखा मैंने। इसका नाम क्या रहेगा, N प्रोपाइल अल्कोहल। सेम कंपाउंड है, खाली आपको इजी लगना चाहिए इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो ये हमारा यहाँ पे OH है, तो ये रहेगा हमारा कौन सा कार्बन एटम, अल्फा, और ये हमारा रहेगा कौन सा कार्बन एटम, बीटा। तो अल्फा कार्बन से रिमूव करो OH और बीटा कार्बन से रिमूव करो H। तो हियर अगेन विल यूज व्हाट, concentrated H2SO4 and on heating, concentrated H2SO4 and on heating, अल्फा कार्बन से रिमूव करोगे OH, बीटा कार्बन से रिमूव करोगे H, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, CH3 CH, यहाँ से H चला जाएगा H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा कंपाउंड बनेगा प्रोपीन। ये हमारा कंपाउंड कौन सा बनेगा, प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन प्लस और 8 वाटर। 3 कार्बन आइटम है, 1 2 3, 3 कार्बन आइटम मतलब क्या बनेगा, प्रो, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए क्या बनेगा, EN, प्रोपीन। ये हमारा कौन सा अल्कोहल है, N मतलब ऑल कार्बन आइटम आर इन द कंटिन्यूअस चेन, इसलिए N प्रोपाइल। ये आपको नाम सारे लर्न करने पड़ेंगे, N प्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या रहेगा, N प्रोपाइल अल्कोहल। कौन सा एलिमिनेशन है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा कार्बन से क्या रिमूव करोगे, OH, बीटा कार्बन से क्या एलिमिनेट करोगे, H, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो ये डबल बॉन्ड, प्रोटीन एंड वाटर। ये हमारा रिएक्शन था, डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर। व्हाट इज डिहाइड्रेशन, सॉरी, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या था, अल्कोहल ऑन हीटिंग विद, alcohol on heating with sulfuric acid from the alkene with elimination of water molecule. It is also called as which elimination, alpha beta elimination, and in this water is removed, so that's why it is called as the dehydration or removal of water. Removal of water, correct. सबसे पहले हमारा एग्जांपल कौन सा था, यहाँ पे इथाइल अल्कोहल, अल्फा कार्बन से रिमूव कर दिया OH, बीटा कार्बन से रिमूव कर दिया H, तो हमें क्या मिला, इथीन। दूसरा एग्जांपल क्या लिया था, N प्रोपाइल अल्कोहल, अल्फा कार्बन से रिमूव कर दिया OH, बीटा कार्बन से रिमूव कर दिया H, और इनके बीच में चला जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड मिला, 3 कार्बन एटम मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड मतलब EN, प्रोपीन एंड वाटर। ओके,
The second preparation of the alkene addition reaction by partial reduction of alkyne. By partial reduction of alkyne means what? The carbon-carbon triple bond of alkynes. Carbon-carbon triple bond of alkynes are reduced to carbon-carbon double bond with hydrogen. तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा by using hydrogen and using which catalyst? Lindlar's catalyst. Lindlar's. What is Lindlar's catalyst? It is a mixture of palladium with charcoal in. It is a mixture of palladium with charcoal in with quinoline. Lindlar catalyst, it is a mixture of palladium with charcoal in quinoline. ये हमारा Lindlar's का मीनिंग है. Lindlar's मतलब नेम ऑफ द पर्सन जिसने इन्वेंट किया रहेगा. जिस आदमी ने इस कैटलिस्ट को इन्वेंट किया था उसका नाम क्या था? लिंडलार्स था. जिस आदमी ने इस कैटलिस्ट को इन्वेंट किया था उसका नाम क्या था? लिंडलार्स था. इसलिए उसे नाम क्या दिया? लिंडलार्स कैटलिस्ट. और इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? पैलेडियम विद चारकोल. पैलेडियम विद चारकोल इन क्विनोलिन. पैलेडियम विद चारकोल इन क्विनोलिन. और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिशन ऑफ व्हाट? हाइड्रोजन. तो एग्जांपल अगर हमें लेना है तो अगर हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, 2 कार्बन आइटम है तो क्या लिखोगे? ईथ. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो क्या लिखोगे? YN, इथाइन. एंड वेरी कॉमनली दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटिलीन. देखो 2 कार्बन आइटम है इसलिए उसे क्या? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए क्या नाम दोगे? एसिटिलीन. और इसमें ऐड करोगे हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, कार्बन दैट इज चारकोल इन क्विनोलिन. और एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन के पास और हमें क्या मिलेगा? CH2. यहाँ पे हाइड्रोजन CH2, ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज टू डबल बॉन्ड और यहाँ पे मिलेगा CH2 एंड दिस इज व्हाट वी गॉट ओवर हियर, इथीन. ये हमें मिला इथीन. करेक्ट. तो यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH था, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया in the presence of palladium and charcoal catalyst in the presence of quinoline. CH2 double bond CH2 और हमें क्या मिला? इथीन. ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज टू डबल बॉन्ड. दूसरा एग्जांपल लो. CH3 CH. 1 2 3 carbon atom. 3 carbon atom is called as the prop. 1 2 3 carbon atom is called as prop. Triple bond is called as the propyne. कार्बन का वैलेंसी करेक्ट है. कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन प्लस 1 बॉन्ड 4. यहाँ पे कार्बन के पास 3 बॉन्ड प्लस 1 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड कार्बन इन द क्विनोलिन. और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन चला जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में, एक हाइड्रोजन चला जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के राइट साइड में. एडिशन कहाँ पे होगा? अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. एडिशन कहाँ पे होगा? अक्रॉस द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. 1H विल गो टू लेफ्ट साइड कार्बन एटम, 1H विल गो टू राइट साइड कार्बन एटम और यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 CH. यहाँ पे एक हाइड्रोजन चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड विल चेंज टू डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2.
How many carbon atom we got over here? 1, 2, 3, 3 carbon atoms. So it is called as a probe. 3 carbon atoms. So it is called as a probe. Double bond. So it is called as what? EA. देखो यहाँ पे भी प्रोप है, यहाँ पे भी प्रोप है, बट इससे इसका नाम क्या लिखोगे? प्रोपाइन. 3 कार्बन एटम और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए वाइन. यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम बट डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज अ प्रोपीन. तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा रिएक्शन देखा? प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स. Preparation of the alkenes by which reaction? Addition reaction. How? Partial reduction of the alkyne. Here carbon carbon triple bond are converted to carbon carbon double bond by using Lindlar's catalyst. What is Lindlar's catalyst? It is a mixture of palladium with the charcoal in quinoline. और फिर यहाँ पे लिखा इथाइन में हाइड्रोजन अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? इथिन मिलेगा. और प्रोपाइन, प्रोपाइन में अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे, प्रोपाइन में अगर हाइड्रोजन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? प्रोपीन मिलेगा. तो वी हैव फिनिश विद द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. मतलब अल्कीन कैसे बनाने का 2 मेथड देखे थे. एक था एलिमिनेशन में रिएक्शन, दूसरा था एडिशन रिएक्शन. एलिमिनेशन और एडिशन, और एलिमिनेशन में 2 थे. एक था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और एक था डीहाइड्रेशन. ओके, और एडिशन. ये हमारा पार्ट प्रिपरेशन का कंप्लीट हो गए. रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट.